परमेश्वर के बच्चे, Greetings in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु के महान नाम से The Bible says, बाइबल कहती है Genesis 1:28, उत्पत्ति 1:28 में, and God blessed them, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी and God said to them, और उनसे कहा, be fruitful and multiply. फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। The Bible says, बाइबल कहती है Song of Songs श्रेष्ठ गीत के अनुसार 7:7, 7वें अध्याय 7वां वचन, your stature is like that of the palm, and तेरे- your breast like a shatter of fruit. तेरा ढील ढाल खजूर के समान शानदार है और तेरी छातियां अंगूर के गुच्छों के समान है। But sex isn't just about procreation. लेकिन यौन क्रिया प्रजनन नहीं है। It's meant to be a joyful, intimate experience between partners. ये एक सुखदायक और आत्मीयता दोनों पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए। By observing all these things, ये सब देखते हुए I would like to introduce my theme, मैं अपने सारांश को ये देना चाहता हूँ। a gift receives from the Creator is sexuality. सृष्टिकर्ता के द्वारा दिया गया एक तोहफा लैंगिकता। Though the word sex does not occur in the scripture, ये यौन क्रिया जो है शास्त्रों में नहीं दिया गया है, the Bible language describes लेकिन बाइबल के भाषा में that God's plan for human sexual behavior, परमेश्वर की योजना मानव यौन का व्यवहार, including procreation of the next generation ये प्रजनन और आने वाली पीढ़ियों and sexual pleasure within marriage. और यौन क्रिया का सुख, The definition of के- the marriage शादी का परिभाषा जो है is legally recognized. एक कानूनी तौर पर Personal union व्यक्तिगत संग enter into a man and a woman पुरुष और स्त्री के बीच में रहता है। with the intention of living together ये एक साथ रहने की योजना and having sexual relation. और यौन क्रिया का संबंध होना। Sex was designed by the Creator परमेश्वर ने लैंगिकता को बनाया है as a special gift एक खास तोहफा के प्रति, that allows husband and wife जो कि पति पत्नी के बीच में to express oneness in intimate एकता और आत्मीयता को दिखाता है and exclusive love to share in His plan और विशिष्ट प्रेम बांटना for उसकी योजना में है। procreation. प्रजनन यौन संबंध में Sexual drives are given by God यौन संबंध परमेश्वर के द्वारा दिया गया as the है most natural high मानव शरीर में प्राकृतिक अनुभव कर सके, They are destructive only when uncontrolled or misused. और ये नाशकारक है जब ये अनियंत्रित या दुरुपयोग होता है। There are the passages यहाँ पर कुछ वाक्य हैं talks about sexuality. जो कि लैंगिकता के के Genesis बारे में 18:12, उत्पत्ति 18:12 में, 26:8, 26 के और 8 में, Song of Solomon 4:1-16. श्रेष्ठ गीत में 4 और 4 अध्याय और 1 से 16 तक, Others suggest that और दूसरे बताते हैं abstinence from sexuality activity, और दूर रहने की प्रतिक्रिया Exodus 19:15, निर्गमन 19:15 में, 1 Samuel पहला 21:4-5. सैमुएल 21 के 4 और 5वें में, Derivant of sexual behavior is clearly condemned. विचलित व्यवहार जो है ये समलैंगिकता का विषय है। Any intimate sexual relationship कोई भी साथ या आत्मीयता लैंगिकता जो है outside of monogamous fidelity within the covenant of marriage is condemned as sexual immorality. जो पति पत्नी के व्यवहार के बाहर होता है, The alternate is the gift of celibacy. और उसके अलावा जो परमेश्वर का तोहफा है, We the believers are expected to walk and exercise हम जो विश्वासी हैं ये परमेश्वर उम्मीद करता कि हम उसमें चलें self-control in overcoming improper sexual impulses, not by asceticism, और आत्म संयम रखना by the power of Holy Spirit. पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। Dear friends, प्रिय भाइयों, I just want to share one example. मैं एक
उदाहरण देना चाहता हूँ about Joseph's story. यूसुफ की कहानी के बारे में। Joseph's story, tempted by the king's wife, but he gave priority to God, king and moral values. यूसुफ को राजा की पत्नी ने Certain facts about sex should be remembered. और लैंगिकता के बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो याद रखनी है। Sex is God given. लैंगिकता जो है परमेश्वर की देन है। Genesis 2:18. उत्पत्ति 2:18 में दिया गया है। Satan can offer nothing in the realm of sexuality except distortion and emptiness. शैतान जो है लैंगिकता को के विशेष रूप में शून्यता देता है। The open discussion of sex is not wrong in यौन के itself, बारे में खुला विवाद गलत नहीं है, but it is wrong when such discussions are outside the divinely assigned context. लेकिन ये तब गलत हो जाता है जब ये दिव्यता के बाहर बोला जाता है। Sex between a man and woman is different than sex in animals. यौन क्रियाएं जो हैं पुरुष और स्त्री और जानवरों के बीच में भेद है। Genesis 2:19-20. उत्पत्ति 2:19 और 20 में लिखा गया है। Human sexuality has a specialized purpose beyond procreation. मानव लैंगिकता का एक खास प्रयोजना है। Sex in the human intimacy is a total union. यौन क्रिया मानव आत्मीयता का पूर्ण एकता और शक्तिशाली है। God made two out of one, and the two are complete until they are reunited. परमेश्वर ने दो को एक बनाया है और एक को वो दोनों ही एकता में बंधे हुए हैं। The expression of this would be when God given the gift of celibacy. और ये जो है परमेश्वर का दिया हुआ अवैधता का तोहफा है। Sex is regulated and purposeful. और यौन क्रियाएं जो हैं विनियमित हैं और पर्पसफुल है। Genesis 2:24-25. उत्पत्ति 2:14-24 और 25 में लिखा गया है। God himself sets the boundary. परमेश्वर खुद ही सीमा रखता है। According to the Matthew 19:4-6. मत्ती 19 चौथे वचन और छठे वचन। Anything short of this total and exclusive commitment between husband and wife is frustrating and destructive. और यदि इसके बीच में कोई भी पति पत्नी के बीच प्रतिबद्धता है वो निराशा और विनाश की ओर ले जाता है। God approves the relationship in which husband and wife meet their physical needs in sexual intercourse. परमेश्वर पसंद करता है कि पति पत्नी शारीरिक संबंधित कार्यरत हो। Proverbs 5:15 and 18-19. नीति वचन 5वें अध्याय और 15, 18 और 19 में लिखा गया है। Both husband and wife has sexual needs that are to be met in marriage. दोनों पति और पत्नी को यौन आवश्यकता की शादी के दायरे में रखना है। 1 Corinthians 7:3. पहला कोरिन्थी 7:3 में। And each is to meet the needs of the others and not of his own. एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करना है, ना कि अपना ही। Dear friends, प्रिय मित्रों, dear brothers and sisters, प्यारे बहनों भाइयों, we all should know हम सबको ये the मालूम purpose होना of चाहिए sexual intimacy are this. कि यौन आत्मीयता के कुछ प्रयोजनाएं हैं। Every human being looks for intimacy, very thick relationship with one person. It should be a mutual need satisfaction. हर मानव आत्मीयता बहुत करीबी रिश्तों को देखता है और ये एक दूसरे की जरूरत को तृप्त करना है। Number 1. पहला Knowledge. ज्ञान। Genesis 4:1. उत्पत्ति 4 अध्याय पहला वचन। Now Adam knew his wife, आदम अपनी पत्नी को जाना and she conceived and bore. और उसने कैन को जन्म दिया। I have acquired a man from the Lord. और उसने कहा मुझे एक पुरुष मिला है। It talks about full knowledge. और ये पूरे ज्ञान के बारे में बताता है। In Hebrew, हिब्रू भाषा में it means yada, इसका मतलब है यादा, meaning new. इसका मतलब है नया, It is often used in the Old Testament जानना, और ये पुराने नियम में to describe sexual intimacy. ये लैंगिक आत्मीयता को बताता है। Unity. दूसरा Second, Genesis 2:24. एकता, उत्पत्ति 2:24 में। Therefore a man shall leave his father
इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर and mother be joined to his wife, और पत्नी से मिला रहेगा and they shall become one flesh. और वे एक ही तन बने रहेंगे। The marriage covenant has 3 parts. और शादी का नियम जो है 3 भाग में है। To leave father and mother, पहला, माता पिता को छोड़ना, a reference to the wedding ceremony or time of public commitment. ये शादी समारोह और सार्वजनिक प्रतिबद्धता है। To be joined suggesting और मिलना tender affections and faithful commitment in a permanent relationship of growing love. स्नेह को बताता है। To become one flesh in physical union, और एक शरीर होना, which knows the deepest and most exclusive intimacy. और जो कि बढ़ते प्रेम को स्थायी संबंध देता है। According to the English grammar, और अंग्रेजी व्याकरण के the verbs translated leave, लीव the का verb ट्रांसलेट किया translated गया है and छोड़ना be joined, और उसके साथ मिलना। are used elsewhere in scripture और ये कहीं अध्याय के कुछ और जगहों पर लिखा to गया है, describe covenant relationship. संबंधों के नियम को बताता है। Deuteronomy 4:4, ये Prophet Jeremiah 4:4, जर्मया 1:16. 1:16। Comfort. आराम। Genesis 24:67. जेनेसिस उत्पत्ति 24 का 67। Then Isaac brought her और आइजक उसे लेके आया into his mother Sarah tent, अपनी माता सारा के डेरे में, and he took Rebekah, और उसने रेबेका को and she became his wife, अपनी पत्नी बनाया, and he loved her. एंड उसने उससे प्रेम किया। This is the another key event ये एक और महत्वपूर्ण घटना है leading towards the fulfillment of the promise जो अब्राहम को एक महान राष्ट्र बनाने के to वादे make को, of Abraham a great nation. महान राष्ट्र बनाने के वादे को पूर्ति करता है। Procreation. सृष्टि के बाद Genesis 1:28. जेनेसिस उत्पत्ति का 1:28। As we see, जैसा कि हमने देखा है, then God blessed them, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी and God said to them, और उनसे कहा, be fruitful फूलो फलो and multiply, और पृथ्वी में भर जाओ, and fill the earth और उसको अपने वश में कर लो, and subdue it, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों को अपने अधिकार में कर लो, have dominion over the air and everything that moves on the earth. और आकाश पर और सब जंतुओं पर अधिकार कर लो। Be fruitful and humanity. फूलो फलो और मानवीयता का This motive refers, ये दिखाता है, though throughout Genesis in association with the divine blessings. ये पुनरावृत्ति करता है बाइबल के दृष्टिकोण के अनुसार। Genesis 9:1-7, उत्पत्ति 9:1 और 7, 17:20, 17 और 20, 28:3, 28 और 3, 35:11, 35 और 11, 48:4, और 48 और 4, and serves as the basis of biblical view और ये आधार के रूप में दिखाता है that raising faithful children is a part of God's creation. कि वफादार बच्चों की परवरिश मानव It's जाति a के plan लिए for mankind. ईश्वर की रचना God creation plan is that योजना है the whole earth should be कि पूरी पृथ्वी को populated by those who knows Him उन लोगों द्वारा आबाद किया जाना चाहिए and who serves wisely जो उन्हें जानते नहीं और as His wise regents or representatives. और जो बुद्धिमत्ता उसके उपाध्यक्ष या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। Subdue and dominion. इसे वशीभूत करो और प्रभुत्व। The term subdue शब्द वश में करना in Hebrew kabash. हिब्रू भाषा में काबाश है। Elsewhere, और कहीं और it means to bring a people ये बताता है कि लोगों को लाना है or land into subjection या विवाद में उतारना है so that ताकि it will yield service to ये the one subduing it. और जो वश में करने वाले की सेवा कर सके। Numbers 3:22-29. Numbers 3:22-29 says, हाँ, here the idea is that यहाँ पर ये बताया गया है कि the man and woman are to make पुरुष और महिलाएं
earth resource beneficial for themselves, पृथ्वी के संसाधन को अपने लिए which implies फायदेमंद बनाना है, that they would investigate जिसका अर्थ है कि and develop the earth पृथ्वी के संसाधन को विकसित resource to करें make them और मानव के लिए useful for human beings generally. उपयोगी बनाने के लिए This विकसित करें। command provides a foundation for scientific and technological development. ये आदेश वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के लिए एक आधार प्रदान करता है। The evilness to which people have to put their dominion comes as a result of Genesis. जिस बुराई के लिए लोगों ने अपनों का विचार रखे और वो आता है उत्पत्ति की किताब Over में। every living thing. और सब जीवित वस्तुओं के ऊपर As God representative, एज मानव जाति के प्रतिनिधित्व के कारण human beings are to rule over every living thing on the earth. मानव जाति को हर जीवित पर अपना अधिकार जमाना है। These commands are not, ये आज्ञा however, पृथ्वी की ये जरूरी नहीं a है mandate to exploit the earth and its creature to satisfy human greed. कि ये जरूरी नहीं है कि पृथ्वी के संसाधनों को मानव भूख के लिए, For the fact that Adam and Eve were कि ये आदम और हव्वा जो थे in the image of God. वो परमेश्वर के रूप में थे। Genesis 1:27 उत्पत्ति 1:27 के अनुसार implies God's expectation that human being will use the earth wisely and governs it with the same sense of responsibility and care that God has toward the whole of his creation. ये दिखाता है कि परमेश्वर चाहता है मानव जाति जो है पृथ्वी पर बने हुए संसाधनों का बहुत बुद्धि से इस्तेमाल करे और उसे जिम्मेदारी और देखभाल करे। यही परमेश्वर की इच्छा है। Dear loving children of God, प्रिय परमेश्वर के बच्चों, as we all know, हम ये सब जानते हैं there are many things to spoil, बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो कि खराब कर देती हैं, but where are we? हम कहाँ पर हैं? What is our promise today? हमारा वायदा क्या है? What is our decision today? हमारा निश्चित क्या है? Let's do चलिए आइए करते हैं according to the will of God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। A gift from the Creator is sexuality. ये जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया हुआ लैंगिकता है, We can use in a right way, हमें उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है, not in a negative way. ना कि दुरुपयोग करना है। By seeing these passages, ये अध्यायों को देखते हुए you all should know आप सबको ये जानना चाहिए what is the expression value for sex ये यौन क्रियाओं के क्या महत्व है and how we can celebrate it joyously from the scripture portion. और इसे किस तरह से हम इसका आनंद उठा सकते हैं बाइबल के अध्यायों से। But all these things, लेकिन ये सब जो है you all should know the facts आप सबको ये जानना जरूरी है about sex. ये लैंगिकता के कारण, Because this message is not for saying something, ये मैसेज कुछ कहने के लिए नहीं है, but to change our lives, लेकिन अपने जीवन को बदलने के to लिए, transform our lives. हमारे जीवन को बदलाव लाने के लिए। Then only तब ही we can come closer to God. हम लोग परमेश्वर के नजदीक आएंगे। If you are in a bad situation, अगर आप एक खराब दृष्टिकोण में हैं, try to come to God. आप कोशिश करिए कि परमेश्वर के पास Then आ सकें। God is going to deliver you. और तब परमेश्वर तुम्हें निजात देगा, Then God is going to liberate you. तब परमेश्वर तुम्हें आजादी देगा। If you stand with God, अगर परमेश्वर के साथ खड़े रहोगे, Jesus will fight with this devil. यीशु मसीह शैतान के साथ लड़ेगा Then you will overcome of it. और तब आप उसे जीत जाओगे। But every time, लेकिन हर समय your mind, body and soul should be in a positive manner. आपका शरीर आत्मा जो है एक अच्छे उद्देश्य से होना चाहिए। Then only we can see the purposes of sexual intimacy तभी हम इस लैंगिकता के कारण को हम देख सकेंगे, or knowledge, और ज्ञान unity, और एकता comfort और आराम and procreation. और
प्रजनन को Dear देखते हैं। loving children of God, प्यारे मसीह के बच्चों, these days many youth are spoiling their life. आजकल बहुत सारे युवक लोग जो हैं अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं Loving the partner और अपने साथी को प्रेम करना with the sexual desires. खाली लैंगिकता के कारण। If the love has happened in between the partners, अगर प्रेम है दोनों के बीच में, and definitely they have to do romance in these days. और इन दिनों में जरूरी है कि वो अब एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाएं। If you are listening this message, अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, dear children of God, प्यारे मसीह के बच्चों, be careful. बहुत सावधान रहना। You know, आप जानते हैं sometimes partner will do cheating. कई बार आपके साथी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। Then what about your life? तब तुम्हारे जीवन का क्या मतलब है? Then what is your situation? तब तुम्हारे स्थिति की क्या परिस्थिति है? Then where you will go? तब तुम कहाँ जाओगे? These days, इन दिनों many suicides were attempting. बहुत से आत्महत्या के बारे में सुन रहे हैं। If you are in this situation, अगर आप इस व्यवस्था में हैं, try to come out. उसमें से बाहर आइए, Leave that person. उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए। We should not go in such a way. और हम उसके साथ इस तरह से नहीं जाना चाहिए। Don't worry. Don't worry घबराइए about मत। your marriage. अपने शादी के बारे में मत Don't worry घबराइए। about your partner. अपने साथी के बारे में If मत it is the घबराइए। right choice of God, अगर ये परमेश्वर का उत्तम or choice if है, it is the will of God, अगर ये परमेश्वर की इच्छा है, definitely God will bring to you. तो परमेश्वर जरूर तुम्हारे पास Trust लेके in आएंगे। Him. और उस पर विश्वास रखो। If you don't have trust, अगर तुम्हें विश्वास नहीं there है, will be no use. उसका फिर कोई फायदा नहीं। Then finally one day you will realize फिर एक दिन तुम जानोगे what is your situation, कि तुम्हारी परिस्थिति क्या what है, is your life. तुम्हारा लाइफ क्या है। Then if you cry that time, और उस समय तुम रोगे तो there will be no use. कोई फायदा नहीं होगा। Because you are in the image of God, क्योंकि तुम परमेश्वर के रूप में हो, you should know how to do. तुम्हें जानना चाहिए You are the matured. और तुम बहुत You have to be in a Mature proper हो। manner. और तुम्हें एक सही ढंग से रहना है। Then you will receive a God's blessing like a blessings. तब तुम्हें परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त कर सको। Haggai 2:19 says, हगई 2:19 कहता है, from this day onwards I will bless you. आज के दिन से मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। But how you will receive this blessing लेकिन तुम इसे कैसे प्राप्त करोगे? if you are in a proper manner? अगर तुम एक सही, If you are not in a proper manner, अगर तुम सही नहीं हो, you will not receive this blessing. तो तुम्हें ये आशीर्वाद नहीं मिलेगा। If you want this blessing, अगर तुम्हें ये आशीर्वाद चाहिए, where are you in a situation? और तुम कहाँ हो इस स्थिति में, But come to near to God. परमेश्वर के नजदीक आओ। Definitely, डेफिनेटली all your sorrows are turned into joy. तुम्हारे सब दुख जो हैं खुशी में बदल जाएंगे। You know, dear children, तुम जानते हो प्यारे बच्चों, if anything happened to your life, अगर कुछ तुम्हारे जीवन में होता है, what about your parents? तुम्हारे माता पिता का क्या होगा? What about your brother and sister? तुम्हारे भाई बहनों का क्या होगा? What about your relatives? तुम्हारे रिश्तेदारों का क्या होगा? Everyone will see you as a bad. सब तुम्हें एक बुरे नजर से देखेंगे। But this is the time to confess. लेकिन ये समय है, If even though the world is totally wrong with you, अगर दुनिया तुम्हारे साथ बुरा करे, but God wants to come with you. लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ आना God चाहता wants है। to enter in your life. परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आना चाहता Then है। you will liberate your life तब तुम अपने जीवन को स्वच्छंद करोगे, with joyfully, बहुत खुशी के with साथ, fountain of blessings. और एक फाउंटेन के आशीर्वाद की तरह। Then you will enjoy तब तुम इसका आनंद उठाओगे, your partner तुम्हारे साथी का, with the biblical standard. और बाइबल के अनुसार। Dear children, प्यारे बच्चों, you are loving your partner in the Sunday schools, तुम अपने साथी को अपने संडे स्कूल in the से प्रेम करते churches, हो, चर्च में प्रेम करते हो, wherever you are. जहाँ कहीं भी हो। Look at, देखो, God is watching you. परमेश्वर तुम्हारी ओर नजर किए हुए हैं। Sometimes your father and mother are not watching you, कई बार तुम्हारे माता पिता तुम्हें देख नहीं पा रहे हो, but the Father is watching you. लेकिन पिता परमेश्वर तुम्हें देख रहा है।
if you are continuously repeating on this situation, अगर तुम इसी व्यवस्था में चलते रहोगे, there is a dreadful diseases are coming. बहुत सारे भयंकर बीमारियां हैं, You are losing your life. तुम अपने जीवन को खो रहे हो, You are losing your health. तुम अपने स्वास्थ्य को खो रहे हो, You are getting nerve weaknesses. तुम्हारे नर्व्स जो हैं कमजोर होते जा रहे हैं And you will lose everything. और तुम सब खो दोगे। And after you marry, और तुम शादी you करने will के not बाद marry with your, you will not satisfy with your partner तुम्हें अपनी पत्नी से या because साथी of these से sins. तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सब है, Because of these sins, क्योंकि ये पापों के द्वारा, if you are continuously repeating, और तुम इन्हीं पापों में रह रहे हो, it will be affect your family. ये तुम्हारे परिवार पर, It will be affect your whole life. तुम्हारे पूरे जीवन पर इसका असर होगा। Sometimes कई बार you may not have children तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते because of your mistakes. तुम्हारे गलत कार्य के लिए। Now God is warning you. इसलिए परमेश्वर तुम्हें हिदायत देता है, You have to be तुम्हें उसकी तरह follow His commandments. उनके आज्ञाओं को पालन करना है। If you follow His commandments, अगर उनकी आज्ञाओं को पालन you करोगे, will find a beautiful satisfaction. तब तुम्हें बहुत ही सुंदर तृप्ति मिलेगी, You will find a meaningful satisfaction. और तुम्हें बहुत ही सुंदर तृप्ति मिलेगी। Proverbs 5:19. प्रोवर्ब्स 5वें अध्याय 19वें वचन में, You will enjoy your life with beautifully. और तुम अपने जीवन को सुंदरता से अनुभव कर If you सकोगे। lose your life अगर अपने जीवन को खोते after हो, marriage, शादी के बाद the another partner will see some other lives. दूसरा साथी कुछ और देखेगा, Then what is the use of your marriage life? तब तुम्हारे शादी का क्या प्रयोजन है? If you are having a marriage life, अगर तुम्हारा ये शादीशुदा जीवन you है, have to go in a right manner. तुम्हें एक सही मार्ग में जाना है, Then only तभी God will meet you परमेश्वर तुमसे मिलेगा all your needs. और वो तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, You can enjoy your life. और तुम अपने जीवन को आनंदित से, Ecclesiastes 9:9 says, एक्लेसियास्टिस 9:9 में दिखाता है, Dear children, प्यारे बच्चों, a wife is responsible for availability. एक पत्नी जो है बहुत ही जिम्मेदार, जरूरतमंद है। 1 Corinthians 7:3-5. पहला कोरिन्थी 3 का 7वां अध्याय। A wife is a responsibility for planning. जो पत्नी है जिम्मेदारी के साथ योजना बनाती है। A wife is a responsible for interest. पत्नी जो है बहुत ही इंटरेस्ट के साथ जीवन बिताती है। Likewise, इसी तरह से a wife is responsible for availability. A husband is responsible for availability. जिस तरह से पति जो है जिम्मेदार है, Husband is availability for preparation. और उसकी जिम्मेदारी है पूरी तैयारी करे, And husband is availability for planning. और पति जो है पूरी योजनाएं करे। They both should have understanding. और दोनों को ही समझना चाहिए। If you don't have proper understanding, अगर दोनों में समझदारी नहीं है, then your life will be totally disturbed. तब तुम्हारा जीवन जो है नाशकारक होगा। Then you will think for divorce. तब तुम सोचोगे एक दूसरे को छोड़ने का। You should not be in such a proper manner. तुम्हें ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए। You have to move in a right manner. तुम्हें एक सही मार्ग में चलना चाहिए। When you become a one, तब जब तुम दोनों you एक बनते हो, always depend on the Lord हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर for करो। good health, अच्छे से for सेहत good के लिए, enjoyment, अच्छे आनंद के for लिए, bearing a child. और बच्चों को उत्पन्न करने You के लिए। always depend on the Lord. हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहो, Then only तभी you will enjoy तुम all his grace and blessings. तुम आनंदित रहोगे उसकी कृपा और आशीर्वाद। मित्रों, We are journeying with God. हम लोग यीशु के साथ, You know, many were traveled in the train. बहुत सारे रेल में यात्रा करते हैं, On the station will come, they will get down. और जब स्टेशन आता है वो उतर जाते हैं। But spiritual life is not like that. लेकिन आत्मीय जीवन ऐसा नहीं It है। is a continuous process with God. ये हमेशा चलने वाली मार्ग है। So we are the believers. इसलिए हम विश्वासी हैं, If we use this sexual gift in a right way और अगर हम विश्वासी इस लैंगिककरण को सही रूप में इस्तेमाल and a right करेंगे manner, और सही मार्ग में चलाएंगे, our journey with God also will be in right in our हमारी lives. यात्रा परमेश्वर के साथ अच्छी चलेगी।
यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह ले चले, उनको यहीं पर छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को से दोगे क्या। मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को से दोगे क्या। ले लो तुम जिंदगी नया, नक्शे कदम भी मोड़ लो। ले लो तुम जिंदगी नई, नक्शे कदम भी मोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह ले चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। हे हमारे परम पिता परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय तूने हमें दिया है। हे हमारे परमेश्वर, तू चाहता है कि हम तेरे गुणगान गाएं, तेरी तारीफ करें। खुदावंद, तूने हमको बनाया है, तूने हमको चुना है ताकि हम तेरी तारीफ कर सकें। प्रभु जी, आज के इस मुख्य अध्याय का जो मैसेज पास्टर जी ने हमको दिया है, हम उसे समझे प्रभु जी। लैंगिकता के कारण हम समझे प्रभु जी, किस तरह से पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाना है प्रभु जी, क्योंकि तूने ये हमको सिखाया है प्रभु जी। उत्पत्ति की किताब में जब तूने आदम और हवा को बनाया है, उन्हें एक दूसरे से प्रेम करके फूलों और फलों की आज्ञा दी है प्रभु जी। और प्रभु जी, तूने इतने लोगों को ये स्पष्ट दिखाया है कि अच्छे विचार, अच्छे यौन क्रियाएं क्या होनी चाहिए, और जो गलत रास्ते पर चलते हैं उन्हें क्या क्या तकलीफ़ों को सहना पड़ता है, क्या क्या बीमारियां आती हैं प्रभु जी, उनके सेहत पर असर करता है। यही नहीं परमेश्वर, उनके परिवारजनों से के साथ भी होता है प्रभु जी, और पति और पत्नी में वो रिश्ता टूट जाता है प्रभु जी। लेकिन जो पति पत्नी तेरे ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को बिताते हैं प्रभु जी, वो हमेशा आनंदित होंगे, हमेशा तृप्त रहेंगे। ना ही उन्हें कोई ज़रूरत पड़ेगी किसी और की तरफ आंख उठाकर देखने की। लेकिन तू प्रभु जी, तू उन सब की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इतना सुंदर वचन तूने हमको दिया है, और शास्त्रों के द्वारा, किताबों के द्वारा, बाइबल के अध्यायों के द्वारा तूने हमसे बात किया है किस तरह से ज्ञानवंत बनना है, किस तरह से हमको आराम और एकता में रहना है, आत्मीयता में रहना है, मानव जाति को किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है। ये सब तूने हमको सिखाया है। तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तू आज हमारे बीच में है और हमको अपने आज्ञाओं के अनुसार चलना सिखाता है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी कृपा के लिए, तेरी दयालुता के कारण प्रभु जी। तू हमसे जो प्रेम करता है, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू जो आसमान पर विराजमान है, तू धरती पर देखता है और देखता है कि कोई तुझे देख रहा है या ढूंढ रहा है या नहीं। प्रभु जी, तू कितना आनंदित होता है जब लोग तुझे पूछते हैं, तो तेरी आराधना करते हैं। प्रभु जी, तूने ये ऐसा मन दिया है प्रभु जी। हमारे कठोर हृदयों को तू बदल प्रभु जी, और एक अच्छा हृदय जो कि तेरे लायक हो प्रभु जी, जो तेरी आराधना कर सके प्रभु जी, ऐसा हमें मिले प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं, अभी तक तूने चलाया है, अच्छी तरह से चलाया है, और बहुत लोगों के पास जिनका जीवन नष्ट हो रहा है प्रभु जी, और अलग अलग
मार्गों से वो अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी आंखें खोल और वो देखें कि एक नया जीवन वो पाएं तेरे से, और नए जीवन के अनुसार पति अपनी पत्नी पर विश्वास रखे और प्रेम करे, और पत्नी अपने पति के प्रति वफादार रहे। ओ लॉर्ड, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।